कि मेरा नाम डॉक्टर महबूब मखदूमी है और मैं लगभग 20 साल के करीब कश्मीर से बाहर रहा हूँ। पढ़ाई भी बाहर की है और काम भी बाहर किया है। तो I've attended universities like Pennsylvania, Cardiff, Harvard और काम बाहर करके मुझे अब ये ख्याल आया कि आई हैव टू रिटर्न होम, घर की तरफ आना है और ये प्रोजेक्ट लेके मैं वापस आया। सो दैट इज माय आई स्टार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Well, it's a university by the people, for the people, and of the people of J&K. Ladies and gentlemen, respected members of the press, and my fellow Kashmiris, today we stand at a threshold of history. We are here not just to announce the launch of a university, but to ignite a movement for self reliance, for knowledge, for empowerment. For decades, our young minds have left this land in search of education. Bright students with dreams in their eyes have traveled to Delhi, Bangalore, and beyond because our homeland, our paradise, couldn't offer them the world class higher education. But today we ask, why should children of this place have to live in compulsion? Why should the future of Kashmir be built elsewhere when we have the power to build it right here with our own hands? And so we present to you, ladies and gentlemen, the University of Wat Harbor. I repeat, the University of Wat Harbor. Not just a university, but a dream owned by the people, for the people, and of the people of Jammu and Kashmir. I think you can take it off. This is a people's university. It's not a private venture. Let me be clear. This is not a business. This is not a profit-making enterprise. There are no owners. There are no shareholders. This university will belong to the people of J&K. It will be funded by donations, contributions, and the collective goodwill of our society. This is a first of its kind university in India, a crowd-funded university, built on the strength of our people's unity and vision. Why does Kashmir need this university? Jammu and Kashmir has around 150,000 enrolled students and 11 government-run universities, but we have no private university to bring in diversity, global standards, and skill-based education. If Gujarat and UP can have so many private universities for higher education, why should J&K be left behind? If states across India are welcoming world-class private universities, why should Kashmir's youth not have the same opportunity? This university will, one, offer cutting-edge programs in alignment with the fourth industrial revolution technologies like artificial intelligence, robotics, IoT, autonomous vehicles, 3D printing, apart from the advanced programs in other fields like social and natural sciences, law, business, journalism, so on and so forth. Second, it will create thousands of jobs in education, research, and innovation. Third, it'll train our youth to become global leaders, entrepreneurs, and visionaries. And four, put J&K on the world map as a center of excellence in education. Therefore, our request to the government, for this dream to become a reality, we need the following. Just two demands. One, allocate at least 25 acres of land on a long-term lease at a nominal fee, as has been done in Gujarat and UP for several universities like this. Second, and most importantly, pass the Private University Act in J&K to allow institutions like ours to operate with a strong legal framework. I would like to mention here that there is no Private Universities Act in Jammu and Kashmir. This is not just about a university. This is about building Kashmir's future. A call to the people of Kashmir. This is your university. Every rupee you contribute, every effort you make will help build something historic. No donation is too small, no contribution is insignificant. If we stand together, we can show the world that Kashmiris do not wait for change, we create it. We invite every Kashmiri and friends of Kashmir, be those business leaders, teachers, professionals, students, and a diaspora worldwide, to join this mission. Be a founder, be a part of something greater than all of us put together. हम ये है कि बेसिकली 2019 में 2018-19 में ये ट्रस्ट जो है एस्टैब्लिश हुआ
और इस ट्रस्ट की हमने इमिडिएटली 2019 में बात करना शुरू किया। तो उसके बाद जो हालात चेंज हुए अगस्त 2019 की, तो ये चल नहीं पाया बिकॉज सब बंद रहा। ओके, द ट्रस्ट का नाम उसी पे मैं आ रहा हूँ। जो हमने पहले ट्रस्ट बनाया था 2018 में, उस वक्त यूनिवर्सिटी जहन में नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके साथ शेयर करना। उस वक्त यूनिवर्सिटी जहन में नहीं थी। मैंने सोचा था मैं कॉलेज बनाऊँ। फिर जब मैंने कॉलेज यहाँ पे देखा कि इट्स नथिंग, ऑटोनॉमी नहीं है उन चीज़ों की, आप बस एफिलिएटेड रहते हैं, इट्स नथिंग दैट न्यू दैट यू कैन डू। तो फिर ये यूनिवर्सिटी में बदला। तो तब जो मैंने ट्रस्ट का नाम सोचा था, क्योंकि तब पर्सनल था, तब ये आम लोगों के लिए नहीं था, तो इसलिए तब हमने नाम रखा था ट्रस्ट का YS मखदूमी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट, जो कि अब हमने चेंज किया क्योंकि ये तो आम के लिए हो गया, पब्लिक कॉज के लिए हो गया। तो अब जो यूनिवर्सिटी का नाम है उसी पे हमने एप्लीकेशन दी है अपने CA को, बशीर साहब उनका नाम है, आप भी जानते होंगे। तो वो एप्लीकेशन दायर कर चुके हैं कि ट्रस्ट का नाम भी यही रहे जो यूनिवर्सिटी का नाम हो, किसी फैमिली का या किसी फर्द के साथ इसका कोई ताल्लुक ना रहे। तो उसके बाद 21 में फिर से हमने शुरू किया था, तो कोविड सेकेंड वेव हुआ, तो फिर से मैं वापस गया। तो फिर मैं, मुझे लगता है 1-2 साल पहले मैं कम्प्लीटली वापस आया और मैं यहाँ ही बेस्ड हूँ, फैमिली के साथ वापस आया, 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक जो हमारी अड़चन आ रही थी कि जम्मू कश्मीर में कोई जम्मू कश्मीर प्राइवेट यूनिवर्सिटी एक्ट नहीं है जिसके तहत कोई भी, ना कि सिर्फ हम, प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना सके। तो इसलिए हमारा एक्टिविटी का उतना कोई मतलब हमें नहीं लगा। तो फिर रिसेंटली हम जब मिले, पावर्स दैट बी, हम LG साहब से मिले, हम उसके बाद मेंबर पार्लियामेंट जो है उनसे मिले, और भी 1-2 लोगों से मिले। उनसे जो हमें इनपुट आया, उन्होंने कहा हमें तो ये करना ही है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी लानी है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं लानी, क्योंकि किसी को भी अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी चाहे जम्मू के अंदर या कश्मीर के अंदर खोलनी है तो उनको ये एक्ट चाहिए, राइट। तो इसलिए हमें लगा कि अगर इस वक्त वो ऑन बोर्ड है, उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स में लग रहा है, तो हमने सोचा कि जो भी करना है पब्लिक की लाइट में करेंगे। इसमें अगर हम हमारे क्लेम ये है कि ये आपके लिए, हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए है, तो फिर सबको इसके बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। तो इसमें कोई पोशीदा रखने वाली बात नहीं है। तो इसलिए अब हम 2025 में यहाँ आपके सामने आए। मतलब पहले आपकी फ्रेटर्निटी सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पैरामाउंट है, तो आपको पहले इस चीज़ में शामिल करें कि आप ही फिर आगे जाके इसकी आवाज़ बन सकते। इंशाल्लाह हमारा जो भी इरादा है, गोल है 2026 का, कि दैट्स द फर्स्ट गोल कि 26 में ये शुरू होनी चाहिए, इफ एवरीथिंग गोज वेल। जी CM साहब से तो हम नहीं मिले अभी, लेकिन LG साहब से हमारी बात हुई है। तो लेकिन लैंड का जहाँ तक ताल्लुक है, कि हमारे पास लैंड भी था और है, 1-2 चॉइसेस है, सॉइल टेस्ट भी हमने किया, लेकिन हमारा बोर्ड का मानना ये था कि बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट से, क्योंकि उससे गवर्नमेंट भी थोड़ी स्टेक होल्डर बन जाती है इस चीज़ की, और आपको भी यूटिलिटीज जो है, रोड, बिजली, पानी, वो सब आपको फिर मिल जाता है अगर गवर्नमेंट से फराहम होते हैं। और फिर जी 26 में हम इसकी फंक्शनिंग का गोल रख रहे हैं कि ये क्लास का, क्योंकि गोल के बगैर हम नहीं चल सकते। राबता कैंपस पे शुरू करना चाहते हैं, हमारा गोल वही है। 26 से हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो कैंपस, जैसे मैंने पहले ही अर्ज किया कि हमने बड़गाम में 2 जगह लैंड देखा जो कि हम ले सकते हैं इस वक्त, लेकिन हम रुके सिर्फ इस वजह से कि हमने सोचा कि अगर गवर्नमेंट अभी हम पॉजिटिव रिस्पांस दिखा रही है, अगर वो इसमें ऑन बोर्ड आ जाती है फिर बेहतर है। हमारा मुतालबा है सेंट्रल कश्मीर में कहीं पे, चाहे वो बड़गाम हो, श्रीनगर हो या गांधरबल। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखें, आपकी डिग्री वैलिड होती है डायरेक्टली जो ही एक एक्ट पास हो जाए। एक्ट पास हो गया, फिर अगर आप, जैसा कि आपने बोला, मेकशिफ्ट अरेंजमेंट भी करेंगे, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपने देखी होगी कितने 10 साल वो मेकशिफ्ट अरेंजमेंट बची। सिर्फ एक था कि लेजिस्लेशन, जिसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया, फिर आप डिग्री ग्रांटिंग एजेंसी बन जाते हैं। वी होप, क्योंकि अब अगर हम 26 ना बोले, हम बोले कि चलो जी जब गवर्नमेंट करेगी तब करेगी, तो फिर तो हमारी डेली एक्टिविटीज क्या होगी। यूजीसी फिर वो खुद ही हो जाता है। एक्ट अगर पास हो गया, एवरीथिंग हैपेंस। फिर आपके डिपार्टमेंट वाइज अलग इंस्पेक्शन होते हैं, जैसे MBA है, इंजीनियरिंग है, वो AICT एक्ट अपना भी प्रेजेंट किया है, यूनिवर्सिटी का एक्ट अपनी बना के, यहाँ नहीं था कोई यूनिवर्सिटी, हमने इनको प्रेजेंट किया है अपना एक्ट कि हम ये एक्ट बना रहे हैं स्थापना यूनिवर्सिटी। उसके बाद जब हम इनसे मिले, उन्होंने कहा कि ये तो हमें पास करना ही है,
पहले थोड़ा इनका मामला था स्टेट का, वो ये पार्लियामेंट में पास होना था, स्टेट गवर्नमेंट नहीं थी इन प्लेस, तो स्टेट गवर्नमेंट इन प्लेस है, तो अब शायद इसमें जैसे नीचे साहब ने लिखा है कि ये तो हमने करना ही है, अब हम भी कोशिश करते रहेंगे, आप भी करना होगा। Sir, my only point is that I think the ball will start moving only once the act is passed by the government. I think. देखिए वो आप सही कह रहे हैं, That's when it will be mature to see सही that bus will start. नहीं, बैकग्राउंड में देखिए ना, जैसे लैंड का काम है, बाकी काम है, हम करते रहेंगे, इसीलिए हमने एक गोल सेट किया है, इसलिए कि हम वो काम छोड़ ना दें, जब हो जाए तब देखेंगे, बस वही रीजन है।